حضرت مولانا ابرار صاحب قبلہ مصباحی کو آپ کے حوالے کروں. محبت کے ساتھ نعرہ لگا لیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء سنت لگے اعلیٰ حضرت فیضان قرآن کانفرنس مولانا ابرار صاحب قبلہ مصباحی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہار صبح کے جیسا گلاب لگتا ہے, بیان ان کا ہر ایک لاجواب لگتا ہے. جنہیں چراغ ہی سمجھے تھے آج تک سب لوگ, وہ ہر مقام پر اب آفتاب لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون, صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری جہاں کے مرکز عقیدت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یوں تو انسان دنیا میں آتا ہے, دنیا بھر کے کام کرتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ جن اور انسان کو صرف رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ہر انسان کو ہر چیز یاد ہے, لیکن اسے دنیا میں کس مقصد سے بھیجا گیا ہے وہ اگر بھولا ہوا ہے تو صرف وہ ایک مقصد بھولا ہوا ہے. برکیف عزیزان ملت اسلامیہ, ہماری بستی گاؤں حاجی پور کا یہ ادارہ آج شہرہ آفاق ہو چکا ہے. مجھ سے بیشتر میں بہت دیر سے کنفیوز تھا ان کے یہاں جہاں کھانا کھا رہے تھے ابھی, کہ اتنی دھویں دھار تقریر آخر اس ٹائم ہو کس کی رہی. لیکن جب تھوڑا آگے بڑھا, تھوڑی پہچان ہونی شروع ہوئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ حاجی پور میں بھی ایسے اسٹار پیدا ہو گئے ہیں جو اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو بنانے کی طاقت رکھتے ہیں. اور یاد رکھو کہ یہ کہیں اور کی دین نہیں, کوئی کتنا ہی بڑا کہیں بھی پہنچ جائے, کتنا ہی آسمان پر اڑنا شروع کر دے, لیکن اس کی بنیاد, اس کی عمارت کی پہلی بنیاد اور بنیاد کی پہلی اینٹ اگر کہیں رکھی گئی ہے تو وہ مدرسہ تعلیم القرآن ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کوئی جب لوگ پڑھ لکھ کے بڑے بن جاتے ہیں, بڑے بڑے اداروں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور کسی بھی کالج میں جاتے ہیں, کہیں بھی چلے جائے, لیکن یاد رکھو کہ بڑا بننے کے بعد اسے اپنی عمارت کی پہلی اینٹ کو نہ اس کو بھولنا چاہیے, نہ بنوانے والوں کو بھولنا چاہیے. اور میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں رب قدیر اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور جیسے کہ حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں یاد رکھو کہ یہ مدرسے ہی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی ہر طاقت ہماری مسجدوں کو مٹانے پہ نہیں تلی ہوئی ہے. انہیں معلوم ہے کہ مسجدوں میں جو پروڈکشن آتا ہے وہ مدرسوں سے آتا ہے. مذہب اسلام کی رہنمائی کرنے والے اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ مدرسوں میں ہوتے ہیں. اپنی قوم کی قیادت کرنے والے اور رہنمائی کرنے والے اگر پیدا ہوتے ہیں تو مدرسوں میں ہوتے ہیں. ان مدرسوں میں کہیں کسی نام پر, کبھی کسی نام پر, کبھی کسی نام پر, یعنی اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ مدرسہ چلانے والے خود پریشان ہیں کہ آخر ہم کسے جواب دیں. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ دشمن تو ہے ہی ہمارے طرف ہے, ہمیں اپنوں کو جواب دینا بھاری پڑتا ہے. 50 روپے کی رسید کٹوا کے سارا سال ایسے دادا گیری دکھاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حکمراں اس کا مدرسے کا کوئی ہے ہی نہیں. تو نے 50 نہیں 50,000 دیے ہیں تو یہ رب کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دیے ہیں, کسی مدرسہ چلانے والے کے اوپر احسان کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں. اور یاد رکھو اگر تم نے یہ چاہا کہ ہم نے 500 روپے یا 1000 یا آلو تمہارے بہت اچھے ہوئے, تم نے 50,000 1 لاکھ مدرسے کو دے دیے اور پورے سال مدرسے کے امام صاحب پر, مدرسے کے صدر مدرس یا مسجد کے امام صاحب پر ہم پورے سال حکومت کریں گے, تو دنیا میں تو حکومت کر سکتے ہو, لیکن آخرت میں تمہارے اس 1 لاکھ میں سے 1 روپے کا بھی اجر تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں.
اگر تم چاہتے ہو کہ ہم نے جو اپنی نیک کمائی سے یا جائز کمائی سے لاکھ یا 10 لاکھ نہیں بلکہ 1 روپیہ بھی اگر خلوص خالص لوجہ اللہ رب کی رضا کے لیے مسجد یا مدرسے میں دیا ہے تو انشاءاللہ ریاکاری دکھاوا کرنے والے کے لاکھ اور کروڑ ایک طرف اور تمہارا 1 روپیہ خلوص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دینا ایک طرف، بلکہ یہ روپیہ بھی لاکھوں پر بھاری ہو جائے گا۔ اور جو انسان دنیا میں اپنی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، عزت کے لیے کسی بھی کوئی بھی نیک کام کر لے، اگر اس نے دنیا میں شہرت کمانے کے لیے کیا ہے تو کل آخرت میں ان سے آواز آئے گی کہ تو نے جو کسی غریب کی مدد کی تھی، یا تو نے کسی مدرسے کا تعاون کیا تھا، تو نے جو مسجد کی صفحہ بنائی تھی، یا تو نے جو مسجد کا فرش بچھوایا تھا، تو نے اس لیے بچھوایا تھا کہ حاجی پور کے لوگ مجھے یہ کہیں کہ فلاں صاحب نے ہماری مسجد میں، یہ مدرسے میں، یا کسی غریب کی شادی میں، یا کسی کی غریب کے علاج میں اتنا پیسہ اٹھایا تھا تاکہ میری نام بری، میری دولت اور میری شہرت اور میری مالداری کا چرچا ہو جائے۔ تو تجھے تو نے جس مقصد سے یہ کام کیا تھا وہ مقصد تیرا دنیا میں حاصل ہو گیا، یہاں دنیا آخرت میں تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو کہ جو ہم اپنی جیب سے پیسہ دیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اندر ریاکاری، دکھاوا اور بناوٹ یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اگر تنہائی میں رات کو سناٹے میں جا کر بستر پر لیٹ کر صبح سے شام تک اپنی نافرمانیوں پر اگر غور کر لیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو کسی پر انگلی اٹھانے کی جرات کر سکتا۔ اس لیے کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے آسان طریقہ ہے کسی پر تنقید کرنا، کسی کی کمیاں نکالنا، کسی کے عیب شمار کرنا، اور سب سے مشکل کام ہے اپنی کمیوں پر اور اپنے عیبوں پر غور کر کے ان کو دور کرنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالانکہ میرا موضوع دوسرا ہے کہ پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری بستی کے اندر اتنا بڑا ادارہ بنوا دیا ہے، یہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ رب اگر توفیق نہ دے تو بڑے بڑے اچھے مالدار ارب پتی خرب پتی پیسہ کماتے ہیں اور یوں ہی قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کے پیسہ کوئی کام نہیں آتا۔ سب سے بڑا رب کا احسان یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جو جس نے ہمیں دینے کے لائق بنایا ہے وہ اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ اور کچھ لوگ سوچتے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دولت اور شہرت سے نوازا ہے، پروردگار عالم اگر ناراض ہوتا تو ہمیں دولت نہ دیتا، تنگدستی دیتا، غریبی دیتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم جب ناراض ہوتا ہے تو دولت یا شہرت یا عزت نہیں چھینتا بلکہ اپنی بارگاہ میں جھکانے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے اوپر فخر کریں کہ پروردگار عالم تو نے ہماری کمائیوں کے ذریعے اور ہماری محنت اور ہماری کاوشوں کے ذریعے ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے جہاں سے مہمان رسول کا قافلہ ہر سال نکلتا ہے اور دنیا اور ہندوستان کے کونے کونے پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جسے دولت سے نوازا ہے یا شہرت سے نوازا ہے، وہ ہم اپنے بچوں کو، اور جو ہم اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ ہم کسی غریب کی اگر فیس ادا کر سکتے ہوں تو اپنے پیسے سے اپنی بچوں کی بھی فیس ادا کریں، اور کسی غریب کی یا کسی یتیم کی یا کسی مفلس اور تنگدست کی ہم کسی بچے کی فیس ادا کر دیں تو ہو سکتا ہے پروردگار عالم ہمارے لاکھوں یا کروڑوں نہ قبول فرمائے۔ کسی غریب بچے کی فیس دینا اپنی بارگاہ میں اگر قبول کر لیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دیکھیے، کوئی بھی کام جب انسان اپنے اوپر اس کو ہلکا محسوس کر لیتا ہے، میں بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا کیونکہ یہ میرا گاؤں ہے، میرے سب یہاں اپنے لوگ ہیں، میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں، اور میں اسی ادارے کا فارغ ہوں، آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں کیا۔ لیکن چند باتوں میں یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو سوال آیا ہوا ہے، آپ نے بہت پہلے دیکھا ہوگا کہ جب مسجد میں رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز ہوتی تھی تو نماز کے بعد مسجد میں پوری مسجد قرآن پڑھنے کے لیے کھل ہو جایا کرتی تھی، دیکھا ہوگا آپ نے۔ لیکن اب 4 دن کے بعد رمضان آ رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اگر 10-12 لوگ مل جائے تو مل جائے، ورنہ پوری مسجد میں سناٹا ملے گا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کی تلاوت کرنا چھوڑ دی کہ جس اور حالانکہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا
वो बिला शुबा तमाम उलूमों का जामे था, और जो कुरान अज़ीम जैसी मुक़द्दस और मुतबर्रक किताब परवरदिगार आलम ने अपने महबूब पर नाज़िल फरमाई थी, उसकी मिसाल आज तक कोई ना सका है और न सुबह क़यामत तक कोई उसकी मिसाल और उसका सानी पेश कर सकता है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान अज़ीम से अपना रिश्ता मजबूती के साथ जोड़ लो और इससे जुड़े रहो। दुनिया की जब हर ताकत काम करना छोड़ जाएगी, यहाँ से जाने के बाद इसमें कुरान अज़ीम ही एक ऐसी किताब होगी जिसकी तिलावत, जिसका सुनना, जिसका देखना यहाँ भी काम आएगा, और यहाँ से जाने के बाद बंद कोठरी के अंदर जब हमारा कोई परेशान हाल नहीं होगा तो उस वक्त यही रोशनी बनकर हमारी कब्र को चमकाती हुई नजर आएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं बता ये रहा था कि अल्लाह का फरमान है कि पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे लोग बराबर नहीं हो सकते, ये कुरान अज़ीम का फैसला है। और परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने हमारी बस्ती के अंदर और हमारे गांव के अंदर एक ऐसा इदारा हमारे जरिए कायम करा दिया है कि हमें कुरान से नाज़रे से लेकर और हाफ़िज़ तक और हाफ़िज़ से लेकर हिंदी इंग्लिश तक, और यहाँ तक कि अब लड़कियों की तालीम तक भी कहीं इधर उधर दूर धार भागने की या भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको सपोर्ट करें और हम इसको वोट करें तो इंशाअल्लाह हमारे इस इदारे से जहाँ हुफ़ाज़ फारिग हो रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हुआ कारिया भी पैदा होंगी और आलिमात भी पैदा होंगी और उलमा भी पैदा होंगे, और खाली हाजीपुर की सरजमीन नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने पर इसका डंका बजता हुआ नजर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं भी एक इदारा चलाता हूँ। मुझे मालूम है कि जब रमजान के माह मुबारक में, मुकद्दस महीने में दुनिया अपनी इबादत में लगती है, हर इंसान इबादत करता है, फजर की नमाज पढ़कर सो जाता है और ज़ोहर की पढ़ने के लिए उठता है, ज़ोहर की पढ़ के सोगा, फिर असर में उठेगा, यूं ही उसका रोजा पूरा हो जाएगा। पूछो इन उलमा से जो पूरे महीना मतलब पूरे साल का फंड जमा करने के लिए तेरे मेरे दरवाजे पर जाते हैं, कभी इस जगह जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, और आने के बाद भी यही फिक्र रहती है कि अभी 3 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, जबकि पूरे साल का खर्चा 8 लाख रुपए है, ये 5 लाख और कहां से आएगा। कभी किसी को फोन, कभी किसी को फोन। दुनिया अपनी इबादत करती है। ये उलमाए किराम है जो तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए उस माह मुबारक को भी तुम्हारी खातिर कुर्बान कर देते हैं। कुरान अज़ीम की तिलावत की फुर्सत इन लोगों को नहीं मिलती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, हम रब की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमारी कोई कुर्बानी कबूल हो ना हो, लेकिन इस खानाए रसूल की हिफाजत और इसकी देखभाल अगर हम करते रहे और इससे हुफ़ाज़ जब तक भी पैदा होते रहेंगे और वो जितनों को पैदा करते रहेंगे, ये सदका जारिया होगा जो हमारी भी बख्शिश का जरिया बनेगा और हमारे बुजुर्गों की और हमारे आबा व अजदाद की भी बख्शिश का जरिया बनेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई तो फरमाया गया इक़रा, पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने नहीं पढ़ा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मुझसे पढ़ना नहीं आता। नहीं, अल्लाह के रसूल से पढ़ना आता था, क्योंकि अगर पढ़ना नहीं आता तो थोड़े आगे पढ़ने के बाद फिर कैसे पढ़ना आ गया। जिब्रील अमीन ने फरमाया इक़रा, पढ़ो। आप फरमाते हैं अना लैसा बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ता। बल्कि जब जिब्रील अमीन ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने परवरदिगार आलम के नाम से, अपने रब के नाम से। जब अल्लाह के रसूल ने पढ़ना शुरू कर दिया, पता चला कि जिस इल्म का आगाज, जिस कलाम का आगाज रब के नाम से हो, उससे बेहतर और उससे खैर इल्म कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो कि दुनिया का कोई भी इल्म तुम कितना ही भी हासिल कर लो और अपने बच्चे को कितने ही ऊंचे स्कूलों में पढ़ा लो, अगर तुमने इस तालीम को पसे पुष्ट डाल दिया और तुमने मदरसे को नीची निगाहों से देखने का शुरू कर दिया और तुमने ये अपने वहमों में और अपने ख्यालों में ये सोचना शुरू कर दिया कि इन मदरसे के फारिगीन ये क्या कर सकते हैं, इन्हें पढ़ने के बाद 5,000 की तनख्वाह मिलती है, 10,000 की तनख्वाह मिलती है, 15-20 हजार रुपए कमा पाते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में, आसमान छूती महंगाई के दौर में ये क्या कर पाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तुम्हारी सोच है, जबकि परवरदिगार आलम ने हमारे पैदा होने से पहले हमारा रिस्क हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया था। ये पायलट बने, या इंजीनियर बने, या डॉक्टर बने, जो भी बनना चाहे बन जा, लेकिन तुझे रिस्क इतना ही मिलेगा जितना तेरी पैदाइश से पहले तेरे मुकद्दर में लिख दिया गया था। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी हाफिज को या किसी आलिम को या किसी कारी को तुमने भूखा मरते हुए नहीं देखा होगा, बल्कि ये तुम्हारा मुकद्दर है कि जब तुम खेत में जाकर फावड़ा चलाते हो तब तुम्हें रिस्क मिलता है। ये हाफिज का मुकद्दर है कि जब अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाता है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, जब अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करता है, ये परवरदिगार
परवरदिगार आलम का खुसूसी करम और उसका एहसान है कि परवरदिगार आलम जब हमारा रिस्क उतारता है अपने सिर्फ में हमारी रोजी रखी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनको कमतर समझने की जरूरत नहीं है, इनको कम इल्म समझने की जरूरत नहीं है, इनको नीचा समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारी कौम का सरमाया है। यही हमारी आने वाली नस्लें हैं जिनके ऊपर पूरी कौम की रहनुमाई का बेड़ा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई एक बच्चे को खाना खिलाने की जिम्मेदारी लेता है, कोई दो बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी लेता है, कोई मदरसे का ताउन किसी एतबार से करता है, कोई किसी एतबार से करता है। एक हमें शिकायत ये रहती है कि हमारे गांव में, हमारे महल्ले में मदरसा मौजूद है, यहाँ 40, 50, 60 बच्चे बाहर के पढ़ते हैं, 8-10 का स्टाफ मौजूद है, दुनिया भर के खर्चे हमारे ऊपर लगे हुए हैं, उसके बाद भी कोई बाहर से आता है, तुम्हारे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही जाके उठाएगा भी कि नहीं उठाएगा, ये मदरसे में लगाएगा, ये अपने घर पे लगाएगा, ये अपनी दुकान में लगाएगा, ये अपने कारोबार में लगाएगा। तुम ज़कात अदा करते हो, जहाँ ज़कात अदा करने का हुक्म है वहाँ ये भी हुक्म दिया गया है कि ज़कात को उसके मुस्तहिक तक पहुँचाना भी जरूरी है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाहर से आने वाले किसी आदमी की कोई गारंटी नहीं है, और तुम्हारे पास तुम्हारी आंखों के सामने ये इदारा बना हुआ है, इसमें बच्चे भी रहते हैं, स्टाफ भी रहता है, खाना भी बनता है, दुनिया भर के अखराजात हैं, इनका पूरा करने के लिए आसमान से कोई नहीं आएगा, या सात समंदर पार से कोई इनकी जरूरतों को पूरा करने नहीं आएगा, बल्कि ये हमारी और आपकी सबकी अखलाकी और मिली जिम्मेदारी है कि हम इस इदारे की हर जरूरत का ख्याल रखें, हर जरूरत को पेश नजर अपने रखें। तो इंशाअल्लाह हमारा इदारा आज अभी थोड़ा सा मकतब है, अभी यहाँ हिफ्ज़ की पढ़ाई चल रही है, क़िराअत की पढ़ाई चल रही है, और तालीमात भी पढ़ रही है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, अभी अभी तो हुफ़ाज़ की दस्तार होगी, कभी कुर्रा की दस्तार होती हुई नजर आएगी, कभी उलमा की दस्तार होती हुई नजर आएगी, और इंशाअल्लाह इस इदारे का डंका खाली हाजीपुर या संभल यात्रा पे संभल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने पर बजता हुआ नजर आएगा। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी बैठकों पर बैठकर किसी के खिलाफ जीवनगोई करने से पहले और किसी की जात और किसी की शख्सियत पर एतराज करने से पहले एक लम्हा इस बात को सोच लेना, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आसमान से टपके हुए फरिश्ते नहीं है कि इससे कोई गलती नहीं हो जाए। तुम्हारी औलाद से गलती होती है, तुम्हें गाली बकती है, तुम माफ कर देते हो, तुम्हें बुरा भला कहती है, तुम माफ कर देते हो, लेकिन किसी मदरसे के मदरिस या किसी मस्जिद के इमाम से अगर छोटी से छोटी भी गलती हो जाए, तुम बैठकों पर बैठकर उसके खिलाफ तबसरा करते हुए नजर आते हो। तुम्हें और हमें सबको शर्म आनी चाहिए कि ये कौम के मजहबी रहनुमा है, ये कौम के मजहबी लीडर है, ये वो लोग हैं जो हमारी बात तोड़ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो कि ये दीनी इदारे ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर इन इदारों की आज हमने सपोर्ट न की, इन इदारों का हमने अगर ताउन न किया और इन इदारों की अगर मदद हमने आज न की, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे घरों से हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे घर में कुरान पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि खुद ब खुद पढ़ने वाले खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी नमाज जनाजे पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों के कानों में अज़ान पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आएगा, बल्कि दुनिया के हर मोड़ पर और जिंदगी के हर गोशे में, जिंदगी के हर मोड़ पर अगर कोई रहनुमाई करता हुआ नजर आता है, महज से लेकर लहद तक अगर हमारी रहनुमाई करते हैं, तो यही मदरसे का प्रोग्रेशन होता है, यही मदरसे के बच्चे होते हैं जहाँ हमारे मोड़ पर और हर कदम पर हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह के रसूल ताज़दारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरजमीन पर पैदा होते हैं, तो उस वक्त मक्के की सरजमीन पर सिर्फ 70 अफराद लिखना जानते हैं, लेकिन जब पर्दा फरमाते हैं तो 1 लाख के हाथों में कलम अता फरमा देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये खाली ज़मीन कलाम नहीं था, ये खाली फिक्रीन कलाम नहीं था। अल्लाह के रसूल ताज़दारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के कैदियों को फरमाया, ऐ लोगों, तुम में अगर कोई पढ़ा लिखा हो, तुम में अगर कोई पढ़ना लिखना जानता हो, तो हमारे 10 आदमियों को पढ़ना लिखना सिखा दे, ये तुम्हारा कमाल है, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा माजी बड़ा खूबसूरत रहा है, हमारा माजी बड़ा ताबलाक रहा है। याद रखो और अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ो कि इल्म कीमिया के याद करने वाले मुसलमान हैं, इल्म रियाज के याद करने वाले मुसलमान हैं, अलाद के याद करने वाले मुसलमान हैं, फलक याद के याद करने वाले मुसलमान हैं, पैराशूट के याद करने वाले मुसलमान हैं, घड़ी के याद करने वाले मुसलमान हैं, कोलंबस का जिसने कुतुबनामे का इस्तेमाल किया था, उस कुतुबनामे को याद करने वाले मुसलमान हैं, तैयारे को याद करने वाले मुसलमान हैं। और याद रखो, जो कौम माजी की बुनियादों पर मुस्तकबिल की दीवारें उठाती है, वो जिंदा रहती है, और जो कौम माजी से रिश्ता तोड़कर मुस्तकबिल से बेखबर हो जाती है, वो मर जाती है।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए ये वादा करो कि हम अपने बच्चों को जहाँ कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे या पायलट बनाएंगे, जो भी बनाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी तौफीक दी है, जितना माला दौलत से नवाजा है, जितना शोहरत से नवाजा है, इज्जत से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा करो। परवरदिगार आलम, तूने हमें इतनी इज्जत दी है और इतनी शोहरत दी है, या अल्लाह हमारे अंदर कभी रियाकारी नहीं आनी चाहिए, कभी तकब्बुर नहीं आना चाहिए, कभी घमंड नहीं आना चाहिए, बल्कि सही बात तो ये है कि परवरदिगार आलम, तूने अगर हमें दौलत दी है और हम अपने बच्चों को हाईएस्ट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम से भी आरास्ता करें, वज़ू के फराइज़ भी बताएं, गुस्ल के फराइज़ भी बताएं। और वरना याद रखो कि जिन बच्चों के लिए तुमने रात और दिन खेतों में रातें गुजारी है, कभी आलू का वो काम कर रहे हैं, कभी वहाँ झूठ बोला, कभी वहाँ झूठ बोला, वो दुनिया का कोई काम हम ऐसा नहीं करते जो अपनी औलाद के लिए, कोई काम ऐसा नहीं है जो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के रोशन करने के लिए, और हम हर हाल में ये कोशिश करते हैं कि हमारी जैसे गड्डी कट गई, लेकिन हमारी औलाद के बहुत अच्छी तरीके से कटनी चाहिए। एक दुकान का इंतजाम हो जाए, एक मकान का इंतजाम हो जाए, अच्छे कारोबार का इंतजाम हो जाए। मेरे ऐसी दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, अगर तुमने इस औलाद के लिए खाली दुनियावी एतबार से अगर इंतजाम किया है, तो ये औलाद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कमाए हुए माल से ऐसे इशरत को गुजार सकती है, दुनियावी जिंदगी बहुत आराम के साथ गुजार सकती है, लेकिन तुम्हें अगर याद रखेगी तो बाप उसके तमाम 40 में के बाद इन्हें ये भी खबर नहीं रहेगी कि जिस बाप ने अपनी कमर को बोरी लाद के हमें परवान चढ़ाया था, जिस बाप ने रात और दिन जंगल में गुजार के हमारे लिए घर बनाया था, जिस बाप ने हमारी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उस बाप के कब्र भी इस औलाद को याद रहने वाली नहीं है। और लेकिन अगर तुमने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के साथ साथ उखरावी तालीम भी दिलाई, दीनी तालीम भी दिलाई, कुरान की तालीम से भी रास्ता कराया, और याद रखो कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर स्कूल में मतलब बहुत अच्छी ऊंचे पढ़ जाते हैं, लेकिन दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हमारे बच्चों से नहीं आती, कुरान अज़ीम हमारे बच्चों से पढ़ना नहीं आता। आज हमारे घर में फातिहा का नंबर आता है, जुमेरात आती है, ग्यारहवीं शरीफ आती है, मौलाना के साहब के पास फोन आता है कि जरा बच्चे को भेज दो। अरे बच्चे को मौलाना साहब कब तक भेजेंगे? तुम्हारी दरमियान रहते हुए तकरीबन 30-35 साल गुजर चुके, वो तुम्हें अभी इसका भी शऊर नहीं आया कि हम आपकी इस बात के मोहताज हैं कि हम मदरसे से बच्चे को बुलाकर फातिहा कराए। अरे रब तुम्हें तौफीक दे तो हर घर में एक नहीं बल्कि 4 अगर बच्चे हैं तो हर बच्चा ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा हमारे घर में फातिहा के पढ़ने के लायक होना चाहिए, कोई पंजाबी उसको याद होना चाहिए, भी उसको याद होना चाहिए। मेरे ऐसी दोस्तों और बुजुर्गों, वरना ये कहना पड़ेगा कि चराग के तले अंधेरा है। दुनिया भर में कोई बच्चा मोहम्मद कहीं से, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुरादाबाद से आ रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है। और हमारे आलमिया ये है और हमारी तारीख का आलम ये है कि हम फूट करके मदरसे के बच्चे को बुला रहे हैं कि जरा फातिहा के लिए सब बच्चे को भेज दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम हमें इस इदारे की ज्यादा से ज्यादा खिदमत और ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके चलाने वाले भी इंसान ही होते हैं, और ताउन करने वाले हों या सपोर्ट करने वाले हों या पढ़ाने वाले हों, पर क्या अगर किसी को कोई बात अच्छी लगे कि हम ये मशवरा दें तो तन्हाई में जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं, और वो जो जवाब दें उसको भी बहुत सहमति, बहुत दिल के साथ सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि जिस घर में एक बाप और 4 बेटे हों उन 5 में इत्तेफाक नहीं रह सकता, जहाँ एक इमाम 500 नमाजी हो, सबको एक साथ में इत्तेफाक कैसे कर सकता है? कोई इंसान नहीं कर सकता। ये खाना खुदा और खाना रसूल है, इसमें राय देनी चाहिए, हुक्म नहीं देना चाहिए, और राय के लिए सुनना जरूरी होता है, मानना जरूरी नहीं होता। अगर किसी का मशवरा नहीं माना गया तो अपना चेहरे का जोग्राफिया ना बदले, इसलिए कि वो जो एक जगह बैठा हुआ है उसके सामने 500 लोगों की, 400 लोगों की राय आती है, अगर वो सब पे अमल करने लगा तो पता चला कि मदरसा नहीं फिर कुछ और बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ अता फरमाए, और जिस तरीके से भी हो हम अपने इस इदारे को बहुत सही तरीके से सपोर्ट करें, और परवरदिगार आलम हमारे इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए। और इस इदारे को चलाने वाले और इस इदारे के रूह रवा उस्ताद गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना नफ़ीस अख्तर साहब नूरी दामत बरकातुहू मुक़द्दसिया, मैं दुआ करता हूँ कि उनकी इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और पूरे स्टाफ को बहुत लंबी उम्र अता फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा दीन मदीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।